Welcome back class 11th students. In the previous video students, we started chapter 1 that is sets. Sets में आपको बताया था a well defined collection of objects is called a set. जो भी well defined collection objects का होता है उसको ही आप set बोलते हैं. उसका कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, जैसे आपको नेम ऑफ डेज इन ए वीक, तो संडे मंडे ये आपको बताए हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं, so that's why it is a set of days in a week. जो आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, सपोज हम कहने लगे कि भाई नंबर ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, so it is not well defined because there are so many best good cricketers in India. So in this manner we started exercise 1.1, which is based on roster form as well as set builder form. So now come the next exercise, that is 1.2. Students, this exercise 1.2 is based on, that is, types of sets: finite set, infinite set, empty set, equal sets. So it is very simple exercise 1.2. So just these definitions I have written here on the board. So the first is, what do you understand by empty set? Empty set उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है. So a set which does not contain any element, that is called an empty set. Empty set को आप void set भी बोल सकते हैं या null set भी आप इसको लिख सकते हैं. एम्प्टी सेट मीन्स आप संडे के दिन, जैसे हमारा क्लास एम्प्टी सेट हो जाता है, कोई स्टूडेंट स्कूल में नहीं आता है, सो ऑन संडे योर क्लास विल बी एम्प्टी सेट. सो एम्प्टी सेट को आप इस तरह से ब्रेसिस साइन लगा के छोड़ देंगे, अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, या इस तरह का एक 5 का साइन आता है, दैट इज कॉल्ड 5. बच्चों 5 से भी आप एम्प्टी सेट को इंडिकेट कर सकते हैं. Now next is finite और इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, that type of set is called finite set. So I have written here a set which is empty, क्योंकि empty set finite set इसलिए होगा क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. So the set which is an empty or consist of definite number of elements is called infinite set. Is called infinite set. It is called finite set. So a set which is empty or consists of definite number of elements. Definite number of elements, जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया था कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज फाइनाइट सेट है. सो एज इट इज रिटन, a set which is empty or consists of definite number of elements is called finite. अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला है कि ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. आप लिखते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, तो भी ये खत्म नहीं होंगे. सो that is a set of infinite set. A set of rational number, a set of real numbers, a set whatsoever you want to take, those sets are called infinite set. But in finite set there will be finite number of elements. Next is equal set. नाम से ही पता लग रहा है. So two sets A and B are said to be equal. कब कहलाएंगे इक्वल? जब वो exactly same element रख रहे हैं. So if they have exactly the same elements. For example students, हमारे पास एक सेट A है, इसमें मैंने लिए हैं 1 3 5 तीन एलिमेंट्स, और सेट B के अंदर भी मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं 5 3 1. सो दिस A and B आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, क्योंकि इन तीनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं.
So that's why it is A and B are called equal sets. So we studied now empty set, sorry, finite or infinite set as well as equal set. Now students, we will start exercise 1.2. So now students, starting exercise 1.2 as the first question, which of the following are example of null set? कि 5 इसमें जो है 4 पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा नल सेट का एग्जांपल है. एज यू मे सी द फर्स्ट set of odd natural number divisible by 2. So it is second question, first part. So students, it is written set of odd natural number. So set of odd natural number divisible by 2. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते. सो दैट्स व्हाई इट इज ए सेट ऑफ एम्प्टी. तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, सो देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी सेट. सो इन द आंसर यू विल राइट आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन राइट बिकॉज odd numbers are not divisible by 2, so therefore there is no number which comes in this set. So it is a set of, it is empty set. Now come to the second part, set of even prime number. तो even prime number आप जानते हैं 2 is the smallest even prime number. प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 ही होता है. तो यू विल राइट इट इज सेकेंड पार्ट बिकॉज 2 इज इवन प्राइम नंबर, so therefore it is not an empty set. It is not an empty set. So students, in this manner we may proceed. In the third part, x is that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7. ये भी आपके पास थर्ड पार्ट अगर आप देखें, x is less than 5 and x is greater than 7, तो इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है. लेस देन 5 में 1 2 3 4 आएंगे और ग्रेटर देन 7 में मोर देन 7 आएंगे, दैट इज 8 9 10. तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन एलिमेंट्स है. सो देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी सेट. So in this manner you will write your own language. In the fourth part, y such that y is a point common to any two parallel lines. पैरेलल लाइंस आपको पता ही है कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इट इज आल्सो एन एम्प्टी सेट. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट. जो पहला पार्ट दिया गया है स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर. तो आपको पता ही है एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई it is a set of finite, so it is a finite set. So in the first part you will write because there are 12 months in a year, so therefore it is finite set. In the second part 1 2 3 के आगे इन्होंने डॉट 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 करके इस तरह से लिख दिया है. तो यहाँ पे क्योंकि डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, so it means it contains finite number of elements, infinite number of elements. इस तरह से इन्होंने इसको लिखा है 1 2 3 करके डॉट 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 लगा दिया है. तो इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट. सो यू विल राइट इनफाइनाइट सेट. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली यू मे सॉल्व द थर्ड.
it is a set, it is a set of finite elements, so that's why it is finite set. In the fourth part, the set of positive integers greater than 100, greater than 100 हजारों numbers हो सकते हैं, so that's why it is an example of infinite set. In the fifth part, the set of prime numbers less than 99, प्राइम नंबर्स लेस देन 99 काउंटेबल होंगे, जिसको आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि 2 से आपके प्राइम नंबर से स्टार्ट होते हैं. तो इट इज ए सेट ऑफ, इट्स सेट ऑफ फाइनाइट सेट. सो जस्ट एन एग्जांपल यू मे से. नाउ कम टू द थर्ड स्टेट, वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. जैसा बच्चों हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया है, इट विल बी सेम. सेकंड क्वेश्चन किया है, थर्ड भी आप सेम करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन में आपको ए और बी लगाना है. तो एज यू मे सी इन योर बुक, फर्स्ट ए बी सी डी, बी डी सी बी ए. तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका इक्वल सेट है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो ए में है वो ही बी में आ रहे हैं. इस तरह से आपको करना है. इन द सिमिलर वे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं. कह रहे हैं आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट इक्वल्स. क्या आपके पास ये सेट इक्वल है? नाउ सी द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट. Set A is given containing 2 elements 2 3. Okay, B is having a roster form, it is set builder form. So first convert it into the roster form. इस set builder form आपके पास है such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. So students आप जानते हैं x square plus 5x plus 6 is equal to 0. ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको आप सॉल्व करेंगे तो b में जो x का वैल्यू आ जाएगा वो -2 और -3 आएगा. इफ यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट -2 एंड -3. क्लास 10th में आपने ऐसी इक्वेशंस काफी की हैं. तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इसने पूछा है क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, तो आप लिखेंगे नो. क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि इक्वल सेट्स वो होते हैं जो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स रखते हैं. यहाँ पे 2 और 3 है. ऑन द अदर हैंड इट इज -2 -3 आ रहा है. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल सेट, दे आर अनइक्वल. सो फिफ्थ फर्स्ट पार्ट आई सॉल्व एंड सेकंड पार्ट यू में सॉल्व. दीज आर फॉलो या वॉल्फ जो लिखा है. तो फॉलो में आपके पास जो डबल एल आपके पास 2 बार लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में उसको आप एक बार ही लिखते हैं, तो इसलिए ये भी इक्वल सेट्स का ही एग्जाम्पल हुआ है. नाउ इन द सिक्स्थ कह रहे हैं आपके पास ए से लेकर एच तक 8 सेट्स दिए गए हैं. कह रहे हैं फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स. तो इसमें आप देखेंगे जो भी इक्वल सेट्स हैं उनको आपस में इक्वल रख देंगे. जैसे आप देख रहे हैं बी और डी आपस में इक्वल सेट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में बी के अंदर 1 2 3 4 है और डी के अंदर 3 1 4 2 है. सो इन दिस मैनर यू मे solve this exercise, that is 1.2. So students, I hope exercise 1.1, which is already solved in the previous video, which is based on the roster as well as set builder form as well as what is set. And now this exercise 1.2, it is based on finite, infinite or equal sets. So I hope these 2 exercises will be solved in your copy, students. In the next video we will start exercise 1.3 and more information about this chapter. Thank you, students.